Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of cloud computing. I am your instructor Dr. Nazia Anwar. In this lecture I will give an overview of distributed computing. In the previous lecture we discussed the milestones of cloud computing. This lecture is going to be a basic introduction of distributed computing. Distributed computing means computing in a distributed manner. Let us see the introduction to distributed computing. A collection of independent computers that appears to its users as a single coherent system. Let me start with a very basic and very simple definition of distributed computing. It is the use of multiple computers to solve computational problem. In distributed computing, a program is split up into parts that run simultaneously on multiple computers communicating over a network. Distributed computing systems are used for high-performance computing tasks. Distributed computing is a form of parallel computing. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से इस डेफिनेशन को देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है एंड व्हाई इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग. नाउ ट्रेडिशनली कंप्यूटेशन इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन वन मशीन. That is, you have a personal computer, you give it input, you processes this input and gives output. This is in fact very standard thing. Basically every single day when we use our computers or mobile phones or whatever other computational device. Now it's true that in our day-to-day lives this is actually very much enough. But when we are talking about larger scale projects, for example, if we are doing 3D graphics, if you are doing video rendering, or in fact in the even larger scale, if you are a researcher and you are trying to correct a complicated scientific problem, chances are in such situations the processing power of your single computer may not be enough. A single computer may be too slow to solve a large problem, and that is where distributed computing comes in. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम किसी भी प्रॉब्लम को एक सिंगल प्रॉब्लम को स्प्लिट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में जो सिमल्टेनियसली रन हो सकें मल्टीपल कंप्यूटर्स में किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क पर. The idea is very simple. You take a large complex task and you actually split it into little chunks and then distribute this workload over a large number of computers so that each computer only needs to go through a small job that all the computers are working in unity. इसका आइडिया ये है कि जैसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लार्ज जॉब है, टास्क है, उसको आप एक्चुअली स्प्लिट करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, लिटिल चंक्स में या पार्ट्स में, और उस वर्कलोड को
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर, ताकि कोई एक कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक गो थ्रू हो किसी एक स्मॉल जॉब पर, और तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो उस एक जॉब पर मिलकर काम कर रहे होते हैं, और हर कंप्यूटर के हिस्से में कुछ स्मॉल चंक्स आते हैं. सो एज अ रिजल्ट you get back the result of your large computation in far less time. So really it's actually very simple. However, when it comes to choosing a task that is suitable for distributed computing, some care has to be taken. Such a task is not very suitable for distributed computing. If you have one complicated task that don't has to be done in a single large step, you may have difficulty in actually splitting up into little chunks to actually distribute it to a large number of computers. Such a task may basically have a large number of computations, but every computation actually relies on the result of the previous computation. यानी एक्चुअली कोई भी अब किसी भी टास्क को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि आपने ये चूज़ करना है कि किस तरह की टास्क को आप कौन सी एप्लीकेशन से टास्क सूटेबल हैं जिनको आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऐसी टास्क जिनमें एक स्टेप का रिज़ल्ट जो है, जो उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, एक स्टेप का रिज़ल्ट नेक्स्ट स्टेप का कोई भी रिज़ल्ट जो है वो प्रीवियस स्टेप पर डिपेंडेंट हो, तो इस तरह के टास्क के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो सूटेबल नहीं है. अगर आपने कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टास्क चूज़ किया है जिसको आप एक सिंगल लास्ट स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उसको लिटिल चंक्स में डिवाइड करने में ताकि उनको लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में डिवाइड किया जा सके, तो इस तरह के टास्क को जिसमें बहुत सारी कंप्यूटेशंस हैं और वो उसके जिसमें किसी भी स्टेप्स का रिजल्ट जो है वो प्रीवियस स्टेप्स के रिजल्ट्स पर रिलाई कर रहा हो, इस तरह की टास्क को मुश्किल है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पर परफॉर्म करना. इट मीन्स वंस इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सीरियल पैटर्न इन्वॉल्व्ड, then it is much harder to actually distribute that task. So the most suitable task for distributed computing are parallelizable tasks. That is a task that may require a large number of complicated operations. But many of these operations can actually take place independently of each other. What it means that is that you take each one of these tasks and simply distribute them out. Parallelizable tasks जो हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए. पैरेललाइजेबल टास्क क्या हैं? वो ऐसे टास्क होते हैं जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं और आप उन ऑपरेशंस को एक्चुअली जो वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, यानी आप उनको मल्टीपल सब टास्क में ईजिली डिवाइड कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि आप उनमें से कोई भी टास्क लेते हैं, बारी बारी सब टास्क लेते हैं, उनको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितने भी आपके अवेलेबल लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं. सिंस उसका कोई एक टास्क जो है वो एक्चुअली डजंट एक्चुअली रिलाई ऑन द रिजल्ट ऑफ अ डिफरेंट टास्क, सो ऑल दीज डिफरेंट टास्क कैन देन बी डन एट द सेम टाइम विदाउट रिगार्ड ऑफ द अदर टास्क. अच्छा, अब ये किस तरह होता है? दिस इज़ वेरी सिंपल. बेसिकली you have a host computer as well as an array of computers, a large number of computers that are going to help out with the distributed computing. Host computer कौन सा computer होता है? Host computer is the computer in which you actually set up your task, in which you actually write the main program, and this computer has the task of dividing it into the little chunks
and then divide it into the distributed computers. होस्ट कंप्यूटर, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बहुत सारे इसके अलावा अरे ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि होस्ट कंप्यूटर को हेल्प आउट कर रहे होते हैं उन टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके, डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क, सब टास्क को सॉल्व करने में। होस्ट कंप्यूटर जो है उसमें तो आप एक्चुअली अपने टास्क को सेटअप करते हैं, मेन प्रोग्राम आपका वहीं पर रन होता है और उसी कंप्यूटर का ये टास्क होता है कि वो आपके उस मेन प्रोग्राम को लिटिल चंक्स में डिवाइड करके उनके जो सब पार्ट्स हैं उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तमाम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स पर। हर कंप्यूटर जो है वो फिर क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करता है अपने अपने छोटे लिटिल टास्क की और रिजल्ट्स जो हैं वो वापस मेन कंप्यूटर पर सेंड कर देता है। The host computer then takes the results of these individual tasks and basically puts them all together to generate the final result. अब हम एक जिग्सा पजल एनालॉजी से अपनी इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। Serial computing. Suppose you want to do a jigsaw puzzle that has say 1,000 pieces. We can imagine that it will take you a certain amount of time. Let's say that you can put the puzzle together in an hour. Let's assume कि आप एक जिग्सा पजल करना चाहते हैं जिसमें तकरीबन 1,000 पीसेस हैं। अब इमेजिन करें कि आपको कितना टाइम लगेगा, एक ख़ास सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम आपको लगेगा इसको सॉल्व करने में। हम एज्यूम करते हैं कि इस पज़ल को, ये जो 1,000 पीसेस हैं, इनको कंबाइन करने में, अपने करेक्ट प्लेसेस में पुट करने में आपको अबाउट 60 मिनट्स या मतलब 1 आवर लगेगा। ये हमारी एजम्पशन है। शेयर्ड मेमोरी पैरेललिज्म। If Scott sits across the table from you, then he can work on his half of the puzzle and you can work on yours. For example, ये टेबल है जिस पर आप स्कॉट हैं और एक आप बैठे हुए हैं और आपने इस जिग्सा पजल को सॉल्व करना है। स्कॉट ने अपने हाफ, आप इसको डिवाइड कर लें, उसने अपने आधे हिस्से को सॉल्व करना है और आपने अपने आधे हिस्सा जो आपको डिवाइड हुआ है आपने उस पर काम करना है। तो इससे क्या होगा, आप तकरीबन जो है आप दोनों इकट्ठे जो हैं वो जितने भी पाइल ऑफ पीसेस हैं वो ऑलमोस्ट आप लोग इकट्ठे उस तक पहुंच जाएंगे। यानी क्योंकि आप एक सेम रिसोर्स है जिसके लिए आप दोनों कंटेंट कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा स्लो डाउन तो होगा, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम आप दोनों जो है वो इस पर इकट्ठे काम कर रहे होंगे। यानी आप दोनों इंटरफेस जो उसकी स्कॉट की हाफ पर जो इंटरफेस है और आपकी हाफ पर जो इंटरफेस है, आप दोनों जो हैं वो उस पर इकट्ठे कम्युनिकेट कर रहे होंगे उसी इंटरफेस के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि स्पीड अप जो है वो तकरीबन 2/1 होगा और आपको ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट्स लगेंगे 1 घंटा के बजाय, क्योंकि 2 लोग मिलकर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, सेम रिसोर्सेज को शेयर करते हुए। तो आपको ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स लगेंगे। हमारी जो एजम्पशन थी जिसको आप एक सिंगल पर्सन अगर कर रहा है तो 1 आवर लगेगा, तो वो इसमें टाइम रिड्यूस हो गया। ये शेयर्ड मेमोरी पैरेललिज्म की एग्जांपल है। अब अगर देखें कि 2 और पर्सन्स, पॉल और चार्ली भी 2 साइड्स में, यानी टोटल 4 पर्सन्स हैं जिन्होंने इस जिग्सा 1000 पीसेस के जिग्सा पजल को सॉल्व करना है। हर पर्सन जो है वो अपने अपने पजल के अपने अपने हिस्से पर काम करेगा, बट देयर विल बी अ लॉट मोर कंटेंशन फॉर द शेयर्ड रिसोर्सेज। मतलब जो शेयर्ड रिसोर्सेज इसमें क्या हैं, जो इसके पजल के पीसेस हैं, ये शेयर्ड रिसोर्स है। तो और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हो रही होगी इंटरफेसेस पर। तो आपको जो है इसमें लेस जो है वो आपका स्पीड अप होगा। तकरीबन इसमें आपका 4:1 रेशो का स्पीड अप होगा।
लेकिन आपको फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी और मे बी 20 मिनट्स जो हैं वो तकरीबन, जो आप 4 लोग मिलकर इसको 20 मिनट्स में, 1 आवर के बजाय तकरीबन 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे. If we now put Dave and Tom and Horst and Brendan on the corners of the table, there's going to be a whole lot of contention for the shared resource and a lot of communication at the many interfaces. अब अगर और बहुत सारे पर्सन्स को आप ऐड कर दें, 4 मज़ीद और लोग ऐड कर दें, टोटल 8 लोगों ने अब इसके 1000 पीसेस के जिग्सा पजल को सॉल्व करना है, तो अब कंटेंशन जो है वो इस शेयर्ड रिसोर्स के लिए और भी बढ़ गई है और कम्युनिकेशन भी, हर एक अपनी अपनी इंटरफेस से जो कम्युनिकेट कर रहा है वो कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़ गई है. तो जो स्पीड अप होगा, जो आपको मिलेगा, वो मच लेस होगा जो कि आप चाह रहे हैं, जो आपका एक्सपेक्टेड है उससे, लेकिन आपको तकरीबन जो है वो 5/1 का जो है वो स्पीड अप मिलेगा इसमें. So we can see that adding more and more workers onto a shared resource is eventually going to have a diminishing return. तो हमने ये इसका कंक्लूजन देखा है कि अगर एक शेयर्ड रिसोर्स है, उसमें रिसोर्स कंटेंशन बढ़ रही है, यानी ज़्यादा लोग उस रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, तो वो उसी तरह पीक नहीं बढ़ेगा, कि बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जो उसका स्पीड अप आप कह सकते हैं कि स्पीड अप जो उसकी रेशो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा, वो डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन, जो इंटरफेसेस पे कम्युनिकेशन है वो भी बढ़ जाएगा और रिसोर्स कंटेंशन में. तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेललिज्म क्या है? अब हम एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो चीज़ ट्राई करने लगे हैं. नाउ लेट्स ट्राई समथिंग अ लिटिल डिफरेंट. Let's set up 2 tables and let's put you at one of them and squat at the other. 2 tables हैं, एक पर आप बैठे हुए हैं और एक टेबल पर आपने स्क्वाट को वो बैठा है. Let's put half of the puzzle pieces on your table and the other half of the pieces on squats. आपने आधे पजल के पीसेस अपने टेबल पर रख दिए और आधे पजल के पीसेस जो हैं वो आपने स्क्वाट के टेबल पर रख दिए. Now you all can work completely independently without any contention for a shared resource. अब आप दोनों जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, कोई इसमें शेयर्ड रिसोर्स की कोई टेंशन नहीं होगी, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे. बट द कॉस्ट पर कम्युनिकेशन इज मच हायर इन दिस केस, क्योंकि अब आपको एक टेबल से दूसरे टेबल तक कम्युनिकेट करना है एंड यू नीड द एबिलिटी टू डिकम्पोज, स्प्लिट अप और डिकम्पोज द पजल पीसेस रीजनेबली इवनली, एंड विच मे बी ट्रिकी टू डू फॉर सम पजल्स. अब इसमें ये होगा कि इसमें कॉस्ट पर कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो ये है कि आपको 2 टेबल्स हैं, इसमें आपको कम्युनिकेशन एक टेबल से दूसरे तक पढ़ना पड़ेगा. दूसरा जो आपने डिकम्पोज करना है यानी डिवाइड करना है पजल पीसेस को, उनका इवन, बिल्कुल रीजनेबली इवन क्वांटिटी में उनको डिवाइड करना, ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है कुछ पजल्स के लिए. It's a lot easier to add more processors in distributed parallelism. इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेललिज्म में मज़ीद प्रोसेसर्स जो हैं वो ऐड करना बहुत इजी है, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू बी अवेयर ऑफ द नीड टू डिकम्पोज द प्रॉब्लम एंड टू कम्युनिकेट अमंग द प्रोसेसर्स. लेकिन आपको इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना होगा कि आपने उस प्रॉब्लम को जब डिकम्पोज करना है तो वो कैसे इवनली आपने करना है, और आपने प्रोसेसर्स के बीच में कैसे जो है वो जब कम्युनिकेट करना है, यानी ये प्रॉब्लम्स जो 2 प्रॉब्लम्स हैं कि आपने जो अपने मेन प्रॉब्लम को चंक्स में डिवाइड करना है, डिकम्पोज करना है, और प्रोसेसर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये 2 एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं.
Also, as you add more processors, it may be harder to load balance the amount of work that each processor gets. जैसे आप ज़्यादा प्रोसेसर्स ऐड करेंगे तो हो सकता है कि लोड बैलेंस जो है वो करना मुश्किल हो जाए, अमाउंट ऑफ वर्क को, जो हर प्रोसेस को जो वर्कलोड मिलेगा उसको लोड बैलेंस करना कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये भी एक इशू है, डिफ़िकल्ट टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है. लोड बैलेंसिंग क्या है? लोड बैलेंसिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एवरीवन completes their workload at roughly the same time. For example, if the jigsaw puzzle is half grass and half sky, then you can do the grass and Scott can do the sky. And then you all only have to communicate at the horizon. And the amount of work that each of you does on your own is roughly equal. So you will get pretty good speed up. लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि हर एक को जो वर्कलोड है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम टाइम का ही मिले, जो उसको प्रोसेस करने में वो ऑलमोस्ट सेम टाइम लगे. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना ये नज़र आ रहा है कि टास्क आपके जैसे कि जिक्सा पजल में है कि आप इजीली दो उनको चंक्स में, दो लोगों ने अगर उस टास्क को परफॉर्म करना है, बिल्कुल दो पार्ट्स में, दो चंक्स में आप इजीली उसको डिवाइड कर लें और जो एक ही जितने टाइम स्लॉट के चंक्स हों यानी ऑलमोस्ट रफली इक्वल हों, तो आपको बहुत अच्छी, अगर इस तरह पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा स्पीड अप मिल सकता है. Load balancing can be easy if the problem splits up into chunks of roughly equal size with one chunk per processor. However, load balancing can be very hard. अगर आपका जो प्रॉब्लम है उसको ईज़िली स्प्लिट नहीं कर सकते आप ईज़िली इक्वल साइजेस में, जैसे कि हर प्रोसेसर को एक चंक मिले इस तरह, और साइजेस जिस इक्वल में आप ना कर सकें, तो इस ऐसी सिचुएशन में लोड बैलेंसिंग जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है, बहुत हार्ड हो सकती है.